હાય, 9:30 થઈ ગયા છે. હું હાજર છું. રોજ તમારા માટે લઈને આવું છું એક સેલિબ્રિટી, ફક્ત એટલા ખાતર કે તમારી સાંજ સુધરે, તમને કંઈક એવું મળે જે કન્ટેન્ટ હોય, કશું સરસ જે તમારા સુધી પહોંચે. કોઈ વિચાર, કોઈ વ્યક્તિ. કેટલી મજા આવી. વિક્રમ ભટ્ટે કહ્યું કે 2 જણા એટલા માટે મળે છે કે સુખી થાય, અને છૂટા પણ એટલા જ માટે પડે છે કે સુખી થઈ શકે. સુભાષ ઘાઈએ કહ્યું કે નિષ્ફળતાની પળોમાં મેં હંમેશા દરેક વખતે મારી જાતને કહ્યું છે કે હજી આગળ કશુંક આપણી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું છે. કારે શર્મનને પણ કહ્યું કે ફિલ્મો તો ફ્લોપ થાય અને ન થાય, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આવનારા દિવસો આપણને હરાવવા માટે, આપણને હંફાવવા માટે આવશે. લગભગ દરેક વ્યક્તિ આપણા માટે સરસ પોઝિટિવ મેસેજ લઈને આવે છે, અને આપણે રોજ આ પોઝિટિવ મેસેજ સાથે જોડાઈએ છીએ. આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું થપ્પડના ડિરેક્ટર, મુલ્કના ડિરેક્ટર, તુમ્બિનના ડિરેક્ટર, રાવણના ડિરેક્ટર અનુભવ સિન્હાને. અનુભવજી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વ્યક્તિત્વ છે. જેણે એમનો ઇન્સ્ટા ચેક કર્યો હશે એને કદાચ ખબર હશે કે છેલ્લા થોડા દિવસથી એ રોજ ખાવાની જાત જાતની ડિશિસ અપલોડ કરી રહ્યા છે. એટલે સારા કુક હોવા જોઈએ. અને એમણે બનાવેલી ફિલ્મોનો ગ્રાફ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તુમ્બિન, હા વરસાદ પડ્યો મને ખબર છે ધવલભાઈ. હેપી રેન્સ ટુ એવરીબડી. વરસાદ પડે ત્યારે મને હંમેશા એક વિચાર આવે કે કુદરત ક્યારેય આપણામાંથી ભરોસો ગુમાવતી નથી. આપણે આટલું બધું ખરાબ બગાડીએ છીએ, આટલું બધું કુદરત સાથે ગમે તેમ વર્તીએ છીએ, તેમ છતાં કુદરત હંમેશા, ચહેરા પાછળ ચહેરાનો એક જ ભાગ છે, એના 2 ભાગ નથી, મિસ્ટર સ્મિથ. તો હું મજામાં છું મનનભાઈ. અને મારે એ કહેવું છે કે જ્યારે જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે દરેક વખતે મને એવું રિયલાઇઝ થાય છે કે કુદરતને આપણામાંથી હજી ભરોસો ઉઠ્યો નથી. કુદરત હજી આપણને ચાહે છે. કુદરત હજી આપણી સાથે જોડાયેલી રહેવા માંગે છે. એવો આ સમય છે કે બહાર સરસ ઝીણા ઝીણા છાંટા પડી રહ્યા છે. વરસાદ પડવાની તૈયારી છે. તમને કદાચ આ હવાને કારણે વાગતું અમારું ચાઇમ પણ સંભળાતું હશે. અને આપણે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છીએ કે આપણને રિક્વેસ્ટ આવે અનુભવજીની. અનુભવજીની કારકિર્દી આમ પણ બહુ રસપ્રદ છે. એમનો જન્મ એલાહાબાદમાં થયો. એમણે એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી લીધી છે. એન્જિનિયર થયા પછી 2 વર્ષ નોકરી કરી અને પછી એવો નિર્ણય કર્યો કે મારે કોઈ પણ રીતે હવે ફિલ્મો બનાવવી છે. તો આ નિર્ણય સાથે જોડાયેલી કેટલી બધી વાતો હશે. દિલીપ જોશી ધવલભાઈ નથી કરવા માંગતા લાઈવ, કારણ કે એમણે શેવ નથી કર્યું. હવે કદાચ કરી લીધું હોય તો કરે પણ ખરા. પણ આ સેશન હવે પૂરું થશે 7મી તારીખે. આવતીકાલે હું તમારા માટે લઈને આવવાની છું માનવ ગોહિલને, તેનાલી રામનનો એક્ટર. એ પછી પણ એક્ટર્સ છે. અને જયદીપભાઈ, મેં તમને વચન આપ્યું છે એટલે છેલ્લે દિવસે 7મી તારીખે 7th જૂન હું તમારા સૌની સાથે લાઈવ થઈશ, તમારા સવાલોના જવાબ આપીશ. તો 7 જૂન આપણે થઈશું આમને સામને. કેટલાક લોકોને હું લઈશ લાઈવ. તમારી રિક્વેસ્ટ સ્વીકારીને તમારી સાથે લાઈવ વાત કરીશ 7મી તારીખે, 7 જૂનના દિવસે. આજે તો આપણે વાત કરીએ. હા, દિલીપ જોશી શું કામ લાઈવ ના આવે? મારા મિત્ર છે મિસ્ટર સિંધવ, પણ પ્રશ્ન એ છે કે એને નથી આવવું. અમે એને પૂછી જોયું, માંડ એને આરામ મળ્યો છે, તો એને નથી કરવું. પરેશ રાવલને પણ નથી આવવું. છતાં હું એકવાર ફરી રિક્વેસ્ટ કરી જોઈશ. મારે તમારી સાથે જે વાત કરવી છે, આજે તો આપણે અનુભવ સિન્હાની વાત કરીએ, પછી જ્યારે જે એક્ટર્સ આવશે ત્યારે એની વાત કરીશું. તો અનુભવજીની કારકિર્દી બહુ રસપ્રદ એ રીતે છે કે એમણે 2 વર્ષ નોકરી કરી એન્જિનિયર થયા પછી, અને છતાં મનમાં ક્યાંક એવું લાગ્યા કરતું હતું કે આ નહીં ચાલે, અથવા નહીં થાય, અથવા મજા નહીં આવે.
તો એમાં એમણે ફાઇનલી નક્કી કર્યું કે હવે ફિલ્મો જ બનાવવી છે અને એ આવ્યા અહીંયા મુંબઈમાં. પંકજ પરાશરને અસિસ્ટ કર્યા એમણે સૌથી પહેલાં અને પછી એમણે પોતાની ફિલ્મ બનાવી. એમની સાથે આપણે વાત કરીશું ઝડપથી. હું એમની પ્રતીક્ષા કરી રહી છું. એમની રિક્વેસ્ટ આવે એટલે તરત જ આપણે એમને લાઈવ લઈશું. એમને મેં કહ્યું છે 9:35 9:36, સો હી શુડ બી હિયર એની મિનિટ. થોડી સાયકોલોજીની વાત કરું. હું સાયકોલોજીની વિદ્યાર્થીની નથી. તમે પૂછો તો કંઈ જવાબ આપું. કેન યુ મીટ મી? યસ, ઓફકોર્સ યુ કેન મીટ મી. હું જીવતી જાગતી વ્યક્તિ છું, ભૂત નથી. એટલે તમે મને મળી શકો છો રાણાજી. કેમ ચશ્મા કાઢી નાખું ભાઈ? મને વાંચવા માટે ચશ્મા જોઈએ છે હવે. નરેનભાઈ, તો અનુભવજીની રિક્વેસ્ટ આવી ગઈ છે. વી આર જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર હિમ. હેલો સર. Hello, 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 hello. How are you? So good to see you, sir. So good to see you too. बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आप इतने सारे दर्शकों से जुड़ना पसंद किया आपने. देखिए ऑलरेडी 250-300 लोग तो आ चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं. हेलो. लेकिन वो समाव आपके पास, मैं बहुत देर से हूँ, आपको बहुत समाव मैसेज आ नहीं रहा था कि मैं आ गया हूँ. सुन नहीं सकती सर आपकी आवाज, थोड़ा सा कुछ. जी मैंने कहा हेलो, कैन यू हियर मी? जी हाँ, नाउ आई कैन मैंने हियर. कहा मैं थोड़ी देर पहले से आ गया हूँ, लेकिन वो समाव आपके पास मेरी रिक्वेस्ट जा नहीं रही. रिक्वेस्ट थोड़ी लेट आई. जी सर, जी सर. हाँ. तो मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी कि इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ और इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री है. किसी जी. दिन ये सोचा कि बस हो गया अभी इंजीनियरिंग, तो फिल्में बनाएंगे. बंबई आए और हाँ. आज मैं किसी एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी व्यक्ति से, शख्सियत से बात कर रही थी जो आपको बहुत करीब से जानते हैं. आज आएंगे, शायद उनकी भी कमेंट आएगी. तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि रघुवीर यादव आपको लेकर गए थे पहली बार पंकज पराशर के पास. कौन ले और गया वहां था? से रघुवीर यादव. जी 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 जी. तो वहां से आपकी करियर शुरू हुई. उस वक्त, जी, उस फिर वक्त आपने रघुवीर बहुत यादव ही उनके साथ एक खूबसूरत. बच्चों की जी, फिल्म कर रहे थे, उसका नाम था आसमान से बच्चों गिरा. की फिल्म कर रहे थे, राइट. और जी आप गए थे वहां उनसे मिलने. जी. और उसके बाद आपने, वो बहुत ही तारीफ कर रहे थे. एक्चुअली मैं खोल ही देती हूँ सरप्राइज आपका. पंकज जी से बात हुई मेरी शाम को और उन्होंने इतनी अच्छा. तारीफ की आपकी, इतनी तारीफ की. अरे क्या बात और है. ही वाज सो प्राउड ऑफ यू एंड ही वाज स्पीकिंग उस सो हाई ऑफ यू. तो उस्ताद लोग आज तारीफ शायद करें तो मैंने अच्छी बात होती है. मैंने कहा है आप सुने जरा. तो आज शायद आएंगे पंकज जी. अच्छा. तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, जो आपको शायद बहुत लोगों ने बहुत बार पूछा होगा, लेकिन मेरे दर्शक ये सुनना कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के ये फिल्म का ख्याल कि मैं बनाऊंगा तो फिल्में ही फाइनली, तो ये इनसिक्योरिटी का जो एक वक्त होता है उसको कैसे ओवरकम करें? क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ भी ये बहुत होता है सर कि माँ बाप कुछ पढ़ाएं, जबरदस्ती करें, फिर वो डिग्री ले ले लेकिन मन कहीं और हो. तो when you change a profession and when it comes to changing a profession, the insecurity that you go through, कैसे उसके साथ डील किया जा सकता है? देखिए, हम छोटे शहर बनारस में रहता था मैं, वहां का पढ़ा लिखा, वहां से वहां बड़ा हुआ. इंजीनियरिंग करने के जी अब तक, उसके पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता. हमको उस समय में या तो इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे. जी. तो हम को खून से डर लगता था तो हम इंजीनियर बन गए. तो करियर चूज करने का अच्छा कारण नहीं था, सही कारण नहीं था. जी लेकिन क्या था, वो पिताजी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना था, तो हमें भी पिताजी को उनको वो करना था कि भाई आप जो चाहते हो मैं करके दिखाऊंगा. वो किया. करने के बाद फिर 1 साल नौकरी की और तब ऐसा समझ में आना शुरू हुआ कि ये अपने को पसंद नहीं है, कुछ और करना है. तो तब तक कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं था कि फिल्में बनाना है. तो मैंने जॉब छोड़ दिया है.
बिना कुछ सोचे कि मैं क्या करूंगा। तो फिर घर पे बताया नहीं, मैं दिल्ली में था उस समय, तो घर पे बताया नहीं। उसके बाद फिर काफी 1 साल मुझे लगा ये फिगर आउट करने में कि मुझे क्या करना है। और वो 1 साल थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, कमाई कुछ थी नहीं, तो खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, किराया देने के पैसे नहीं थे। लेकिन हुआ यूं कि उस पूरे 1 साल के में मुझे ये पता चल गया कि मुझे फिल्में बनानी है। और फिर मैं बॉम्बे चल फिर पहले सबसे पहले पिताजी के पास गया, माँ पिताजी के पास, उनको बताया कि मुझे फिल्में बनानी है। और पिताजी मेरे को जैसे ज्यादा कूल डूड थे। ये बात तो 1990 की है। तो उन्होंने 1 सेकंड में बोला कि ठीक है जाओ फिल्म बनाओ। तो मैं बॉम्बे आ गया। उसके बाद की जो आपका जो सवाल था, इनसिक्योरिटी, एक्चुअली जब इंजीनियरिंग करने के बाद ये फैसला सर किया कि अब थोड़ा बम्बई। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आपका, थोड़ा सा फोन का वॉल्यूम अगर बढ़ाएं। फोन का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, ये माइक से ही आ रहा है। अभी बेहतर हुई आवाज? हाँ बेटर है, मच बेटर, हाँ। मच बेटर सर। तो जब आए बॉम्बे तो हमको ये तो पता ही था कि अंधे कुएं में जा रहे हैं, क्योंकि ना तो हमको काम आता था, उस काम का कुछ भी नहीं आता था, बेसिक भी नहीं आता था। और शहर भी नहीं पता था। और बम्बई शहर के बारे में मशहूर है कि मतलब बहुत निर्दयी शहर है। अगर प्यार देने पे आ गया तो इतना प्यार देता है कि आप शाहरुख खान हो जाते हैं, और अगर प्यार नहीं दिया तो फिर आपका कुछ भी बुरा हो सकता है। तो वो अंधा कुआं था जब आए थे तो। और उसके बाद फिर हम इस बात के लिए तैयार थे, वर्स्ट के लिए तैयार था। इसलिए जब मैं पंकज पराशर के पास पहुंचा, जो रघु भाई ने मुझे मिलवाया, मैं गया, तो पंकज पराशर थोड़ा सा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बंबई के हैं, दुनिया देश दुनिया घूमे हुए हैं। तो मुझे देखा, मुझे बोला वाई शुड आई हायर यू, क्यों तुमको मैं रखूं? तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं इस बात का। इतना बड़ा आदमी, उससे मिलने का मौका मिला वही बहुत। तो मैंने कहा कि इसलिए हायर कीजिए कि मेरे बराबर मेहनत करने वाला आपको आदमी नहीं मिलेगा। हाँ तो अब वही था मेरे पास, और कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो वो मैंने उनको ऑफर किया, और वो समा उससे इम्प्रेस हो गए कि चलो ठीक है, मेहनत तो करेगा। फिर उन्होंने मुझे रख लिया। और फिर मैंने वहां फिर मेहनत की, काफी बहुत ज्यादा मेहनत की। वही और कह रहे थे कि बहुत ही मेहनती, एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, दैट्स व्हाट ही हाँ, टोल्ड मी, मैं एग्जैक्टली दिस इज स्टूडेंट व्हाट ही अच्छा हूं टोल्ड ऐसा मी मुझे अबाउट यू, लगता है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी अबाउट यू। चलिए अच्छा है, उनको मेरी कुछ अच्छी बातें भी याद है। अच्छी बातें याद है सर। हाँ, वरना तो तो मैंने गलतियां भी इतनी सारी की होंगी ना, वो भी तो याद रख सकते थे। सर आप जब कपिल शर्मा शो पर आए थे, वो वक्त हम्म। था जब मैं काम करती थी एसके टीवी के साथ बंबई में। फिर मैंने अच्छा। वो काम छोड़ दिया जी। तो माय आई बिलोंग टू अहमदाबाद एंड माय होम टाउन इज अहमदाबाद, एंड फाइनली आई क्विट माय जॉब एंड केम हियर। लेकिन जी। तब आपने एक बात कही थी कि आपसे पूछा था कपिल जी ने कि प्रेम कहानियां बनाते थे आप, फिर ये हम्म। पॉलिटिकल कहानियां कैसे बनाने लगे। हम्म। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था मुझे लगता है। तो मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी पहली फिल्म तो बहुत खूबसूरत लव स्टोरी थी, जी। जिसका म्यूजिक बहुत खूबसूरत था। जी। फिर आप टेक्नोलॉजी 10 और रावण और उसके बाद अब जो फिल्में आप बना रहे हैं सोशल इश्यूज पे, लाइफ पे, क्लोजर टू लाइफ, ऑल्सो वेरी क्लोज टू पॉलिटिक्स, देश की हालत पर या देश के कानून पर। तो हम्म। ये बदलाव कैसे आपने कहानियों का आया? मुल्क। तब दाढ़ी काली थी, अब सफेद हो गई। तो तब जो है इश्क और रोमांस समझ में आता था, वो उम्र ऐसी थी। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो शायद देश और समाज समझ में आने लगा। मुझे और कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नया ड्रामेटिक नहीं हुआ, अलावा इसके कि रावण बनाने के बाद मुझे बहुत सारा रिजेक्शन मिला। थोड़ा सा प्यार भी मिला, लेकिन ज्यादा रिजेक्शन मिला। तो उससे मैं थोड़ा हर्ट था, और अपने आप से, मतलब मेरे जीवन का शायद एक 2 साल का दौर ऐसा था जब मैं ये सोचता था कि क्या मैं डायरेक्टर हूं भी, क्या मुझे फिल्में बनाना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो एक वो जीवन का 2 साल वो ऐसे हैं।
और तो शायद उस दौर में अपने आप से बातचीत बहुत ज्यादा हुई, अपने आप से, अपने समाज से, अपने देश के बारे में सोचा होगा, पढ़ रहा था बहुत कुछ। और कम्युनल हार्मनी को लेकर के ना मैं बचपन से बहुत ज्यादा अवेयर और चिंतित रहा हूं। तो मैंने, वो कहानी मेरे दिमाग में आई मुल्क की, और मैं उसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करता था। और फिर मैं वो अड़ गया कि मुझे ये बनानी है, यही बनानी है। हालांकि उसको बनाने के लिए पैसे भी नहीं दे रहा था कोई, लेकिन फिर मैं अड़ गया। और वो शायद वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, मेरे करियर का, कि मुझे मुल्क बनाने के बाद ये समझ में आया कि फिल्में वो बनानी है जो दिल के अंदर से निकलती हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। और अगर आप उसके बारे में फिल्म बनाएंगे तो वो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। तो अब मैं सिर्फ वो कहानियां बनाता हूं जिसमें कोई भी मैथ्स या कोई भी प्रोजेक्ट साइज या इस किस्म की चीजें, तो उसका कंसिडरेशन नहीं होता। मैटर नहीं उसका करती। उसका कंसिडरेशन ये होता है कि मुझे ये बात कहना कितना जरूरी है, बस। तो कैसे चुनते हैं सर आपकी कहानी को आप, या कहानी आपको चुन लेती है? वो तो कविता है कि कहानी मुझे चुनती है, लेकिन ये बात सही है कि कोई एक ऐसा ख्याल होता है, कोई एक ऐसा मुद्दा होता है, जैसे महिलाओं को, बीवी को थप्पड़ मार देना, मतलब वो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ उसके अगेंस्ट। और मतलब फिर वो मुझे जिद हो गई कि ये बनानी है। और वो एक्चुअली इतनी छोटी सी बात थी कि एक मियाँ ने, एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। तो जी वो जी। आए दिन हिंदुस्तान में लोग अपनी बीवियों को मार रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ। इस पर क्या फिल्म बनाओगे। मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना कि पड़ोसी मेरा सिगरेट पीता है, तो अब सिगरेट पीना गलत बात है, नहीं पीनी चाहिए, पर वो पीता है, अब इस पर फिल्म तो नहीं बना सकते। हम्म। तो वो ऐसी बात थी कि पड़ोस में मेरा आदमी वो अपनी बीवी को मारता है, अब इस पे फिल्म बनानी है। पर मैं इतना स्ट्रांगली फील करता था इस बारे में, सिगरेट के बारे में इतना नहीं करता क्योंकि मैं सिगरेट पीता था अभी कुछ महीने पहले तक। नहीं तो सिगरेट पे ही बनाया था। तो फिर वो बैठा लिखने, तो फिर दिल से निकलती गई चीजें जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बहुत सारी बहनों के साथ या बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ देखा होगा, कुछ कुछ इधर उधर। थैंकफुली मेरे अपने घर में मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, मेरे पिताजी इस मामले में बहुत सज्जन आदमी। तो वो बन गई। अब उसी तरीके से कोई दूसरा एक ऐसा मुद्दा होगा जो जैसे इस वक्त जो देश में हो रहा है, वो देश में क्या दुनिया में हो रहा है, वो उसके बारे में बहुत सारी बातें कहने को हैं। और मुझे लगता है किसी न किसी दिन एक कोई ऐसी बात आके मुझसे टकराएगी जो मेरे साथ रुक जाएगी, और शायद उसकी कहानी बन जाएगी और जी। शायद उसकी फिल्म बन जाएगी। बहुत सारे लोग सर जुड़ रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि थप्पड़ बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और थैंक यू। आजकल तो बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो आप लोग लॉकडाउन कैसे में कर लेते हुआ हो? है। मैं या तो आपको देख के बात कर पा रहा हूँ या नीचे देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। आप दोनों कैसे कर रही नहीं सर, आप मुझे ही हैं? देखिए प्लीज, नीचे मत अच्छा। देखिए, जाने दीजिए। हाँ, नीचे वाला आप देख लीजिए। वो मैं देख लूंगी सर। तो हम्म। मैं जो कह रहे, वैसे भी आप मुझे देखें, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है सर। 1 घंटा इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे देख रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ। तो जी जी। ये लोग सर, आजकल जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होने लगी है, जो लोग घर में बंद रहे, या और उसमें कोई क्लास नहीं है, सब लोग हैं। मतलब हम्म। राइट फ्रॉम द अपर क्लास विच वी कॉल क्रीमी लेयर टू बिल्कुल अरे छोटी मृणमयी जो आई है, झुग्गी हमारी झोंपड़ी मेरी में। को राइटर आई है मृणमयी। हाय मृणमयी, हाउ यू? जी। मृणमयी लागू, जिसने मेरे साथ मिलकर लिखी है फिल्म थप्पड़, वो मुझे ओके। नजर आई अब। हाँ। ओके। तो मैं सर ये कह रही थी कि ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई ये पिछले दिनों, और जी कुछ तो रिपोर्ट भी हुई, कुछ रिपोर्ट नहीं भी हुई होंगी। तो जी। थप्पड़ जब आप बना रहे थे और जब आप थप्पड़ आपने रिलीज की, तो एक औरत के दिल से सोचना इतना आसान है कि आप, यू बीइंग अ मैन एंड रेज्ड इन नॉर्थ, एंड योर एंटायर अपब्रिंगिंग इज इन बनारस एंड इलाहाबाद, वेयर हिटिंग अ वुमन, एक थप्पड़ मार देना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये नहीं। कहां से बात आपके पास आई? ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, इवन इट वाज व्हेन आई सॉ द फिल्म।
कि आपके अपब्रिंगिंग में पिताजी, आपने कहा बहुत सज्जन है, लेकिन आपने आसपास में हमेशा ये देखा, तो कहाँ से ये बात आपको आई कि इसके बारे में कहना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए? मुझे लगता है कि वो, चूंकि मैंने मेरे घर में हमेशा ये देखा कि पिताजी पूरा सम्मान करते थे माँ का, कभी उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करना, कभी मतलब कभी फिजिकल तो कोई असंभव बात है, लड़ते तो जाहिर थे ही दोनों, हर मियां बीवी लड़ते हैं। और जब मैंने कहीं और देखा होगा कोई अपनी पत्नी को मारते हुए, तो मुझे लगा होगा कि अरे ये तो अनयूजुअल है, जब मैंने पहली बार देखा या सुना होगा, और मुझे लगा होगा ये तो रॉन्ग है। और फिर धीरे धीरे मुझे पता ये चला होगा एज आई वाज ग्रोइंग अप कि एक्चुअली ये मेरा घर है जो अनयूजुअल है, बाकी के घर में ये यूजुअल है। और फिर मेरे अंदर उसके खिलाफ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक बड़े प्रिय टीचर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो मेरे एक दोस्त के किराएदार थे। मैं उनकी कोई क्लास मिस नहीं करता था, और एक दिन मेरे उस दोस्त ने बताया मुझे कि वो अपनी बीवी को मारते हैं। मैंने उनकी क्लास करना छोड़ दिया, मुझे मेरा मन ही नहीं करता था मैं उस क्लास में जाऊं। तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी फिल्में बनाऊंगा, लेकिन ये जी। मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी इस बात के अगेंस्ट कि आप अपनी, वो बेचारी क्या होता है, एक तो सिस्टम ही रॉन्ग है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपके घर आती है, फिर वो आपके घर को अपना घर बनाती है, फिर वो आपके सपने को अपना सपना बनाती है, फिर वो बच्चे पालती है जैसे कि सिर्फ उसी के हैं बच्चे, उनके तो है नहीं। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो चेक लेके आते हैं बस, तो उनको लगता है वो सर, उनके आपको बाप का बीच में चेक है। इंटरप्ट करूंगी एक सेकंड। कोई मिलन पंचोली है जो कह रहे हैं कि आपने उनको वादा किया था कि आप उनको एक्टिंग करवाएंगे। मुझे नहीं पता। कौन कौन कौन? मिलन नहीं, मैं ऐसा पंचोली वादा करके किसी से नहीं करता, मैं किसी से ऐसा कोई वादा नहीं करता। एक मिलन पंचोली है कोई, जो पता नहीं नहीं नहीं, मिले होंगे आपसे। मैं ऐसा, हाँ जी। कहीं मिलने में आइए मिलिए ऐसा बोला होगा, लेकिन ऐसा जी। जी। वादा मैं कैसे कर दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा था? आप कह रहे थे कि थप्पड़ के बारे में, कि जो घर छोड़कर आती है पति के सपने को अपना हाँ, सपना फिर बनाती आप वो चेक लेके आते हैं जिससे कि आप घर की चीजें खरीदते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ ऊपर हो गया, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। पर आप वो चेक कमा पाए, इसके लिए बैकएंड पे जितना सारा काम होता है वो करती है। सुबह की आपकी चाय से लेके आपके टिफिन से लेकर के, फिर आपका जब मूड खराब होता है तो बेचारी वो कहती है चलो चलो ठीक है, फिर आप बदतमीजी से बात कर देते हैं उससे, वो उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि आप वो चेक लाते हैं, और आपको धीरे धीरे ये लगने लगता है कि वो चेक आपका अकेले का है। वो चेक आपका अकेले का होता नहीं है, वो चेक उसका भी होता है, क्योंकि वो सारा कुछ जो वो पीछे कर रही थी जब आप घर पे नहीं थे, भले वो आपकी माँ का ख्याल रखना, भले वो बच्चों का ख्याल रखना, भले वो तुलसी में पानी डालना, भले वो कौन सा त्योहार होता है जिसपे व्रत रखती हैं औरतें, करवा चौथ पे व्रत रखना, करवा वो सब वो चौथ। कर रही थी। तो चेक उसका भी था। पर आपको क्या होता है, आप धन्ना सेठ बन जाते हैं, आपको लगता है चेक मैं लाया तो अब तू नौकरानी। वो परसेप्शन रॉन्ग है, वो थॉट प्रोसेस रॉन्ग है, और इसलिए आपको लगता है सर, कि हाँ ठीक है, मैं गुस्से में था, मैंने मार दिया, अब बर्दाश्त करो। फिर वो आपका अधिकार बन जाता है, और वो औरत आपको उसको आपका अधिकार बनने देती है, ये उसकी गलती है, क्योंकि उसको उसके माँ बाप ने सिखाया था, फिर उसको उसके सास ससुर भी ये सिखाते हैं, फिर उसको उसकी जेठानी भी ये सिखाती है। तो उसको लगता है अब जेठानी सिखाती है, जेठानी को नहीं सिखाना चाहिए, उसने खुद मार खाई है, तो तुम क्यों सिखा रही हो उसको ऐसा। अब ये परंपरा है, तो इस पर सवाल तो खड़ा करने की जरूरत है। बाकी तो महिलाओं के हाथ में और पुरुषों के हाथ में, वो सॉल्व करेंगे उसको, आई होप करें, लेकिन करेंगे सवाल तो सर। खड़ा करने बहुत की। जनरेशन बदल रही है, बहुत ज्यादा बदल रही है, और अब नहीं, मैं जब बहुत फिल्म लोग बनाना शुरू डिफरेंट। कर रहा था ना, जब मैं लिखना शुरू कर जी। रहा था, तो मैं सोच रहा था इसको किसी छोटे शहर में, लखनऊ में, कानपुर में ऐसा लगता हूँ। लेकिन मुझे जब महिलाओं से बात करनी शुरू की, मृणमयी जो मेरी को राइटर, हम लोग, तो एक जनरल ओपिनियन ये मिली कि नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों में होता है नहीं नहीं सर, ये बड़े शहर हर जगह में, हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे घरों में हर जगह होता है। तो हर फिर जगह हो। फिर भगवान की दया से वो एक ऐसी स्क्रिप्ट भी बन गई जिसमें मैं बड़े शहर, छोटे शहर, बड़े घर, छोटे घर, सबसे डील कर सका। पिछले दिनों हम देख रहे हैं आपके इंस्टा पे, आप तरह तरह के खाने पोस्ट कर रहे हैं सर। हाँ, तो क्या मुझे, आप हाँ, खुद अच्छा बना लेते हैं? हाँ, मतलब 10 में से 7 बार अच्छा बनाता हूँ, और 3 बार ठीक ठीक बनाता हूँ।
3 बार ठीक ठीक बनाता हूँ। आपने तो बनारस का नाश्ता और कड़ा प्रसाद और क्या क्या सब पोस्ट हाँ, किया। कड़ा प्रसाद मुझे बहुत पसंद है। हालांकि उसका नाम बड़ा एग्जॉटिक है, होता बहुत सिंपल है, वो आसानी से बन जाता है जी। और और खाने में बहुत दही कमाल बनाने होता की है। विधि भी आपने दिखा दी। हाँ, दही बनाने की विधि नहीं दिखाई, दही बना के दिखाया। मुझे बड़ा हाँ इंट्रीग होता था कि इतनी बढ़िया दही बाहर से खरीदो तो कैसे मिलती है। तो मैंने सीखा फिर, और फिर मुझे पता चला अभी भी उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी वो लोग बना पाते, लेकिन बेटर बना लेता हूँ पहले से। जी। आप क्या पढ़ते हैं सर? व्हाट इज योर चॉइस ऑफ रीडिंग? पूछ रहे हैं लोग, पता जो नहीं मैं क्या आप क्या तक पढ़ता पहुंचा रही हूँ हूँ एक्चुअली। आजकल। ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। बहुत जरूरी चीज, द एनाटॉमी ऑफ फासिज्म। ये सारी किताबें एक्चुअली अमेजोन से आती रहती हैं पिछले 6-7 दिनों में, तो ये भी ठिकाने पे नहीं गई है, मेज पे ही पड़ी हुई है। जी। इतिहास बहुत पढ़ रहा हूँ आजकल। कुछ सोच रहे हैं बनाने का नया? नहीं नहीं, बस पढ़ रहा हूँ, मुझे जिसमें मजा आ रहा है। हाँ, वो कोई कह रहा है उल्टा दिख रहा है, ऑब्वियसली हाँ उल्टा दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने आखिरी किताब का नाम जोर से बोल के बताया, द एनाटॉमी ऑफ फासिज्म। फिर एक इकबाल साहब की किताब है, मशहूर शायर अल्लामा इकबाल, हाँ जी। उनके शायरी है। फिर एक श्रीनाथ राघवन की वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया है। बहुत कुछ है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे अपने चीफ मिनिस्टर्स को, उनका जी। कंपाइलेशन है एक, वो पढ़ूंगा अभी, मंगाइए। अभी मैं गांधी जी के लेटर्स पढ़ रही हूँ, जिसमें हाँ। बार बार सरदार को जब वो चिट्ठी लिखते थे तो पहले लिखते थे सरदार वल्लभ भाई का जय हो, फिर हाँ। लिखते थे जय हो। हम्म। धीरे धीरे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई का निकाल के उनके जैसे पत्र आने लगे ज्यादा, तो हर बार हम्म। लिखते थे जय हो। तो एक बार सरदार ने उनसे लिखा कि आप बार बार ऐसा जय हो क्यों लिख रहे हैं? हाँ। तो गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे जैसा लीडर अगर इंडिया को मिला है तो इंडिया हम्म। का जय ही जय है। और क्या वो बात है, खत मैं गांधी जी का अभी पढ़ रही हूँ। क्या तो बात है। अभी बहुत सारे खत गांधी जी के पब्लिश हुए हैं नवजीवन से, गांधी ऑन अच्छा, विमेन एंड बहुत कुछ। हाँ, पढ़ने जैसे नवजीवन ने हैं ये। बहुत कुछ पब्लिश किया है अभी। नई नई बहुत सारी किताबें अबाउट एक सबलाइम फेलियर, गांधी अ सबलाइम फेलियर, बहुत खूबसूरत किताब है, which is also हाँ, talking about a few things that he couldn't do or he wanted to do or he should have done. Very और interesting बट गांधी तो फेल perception. ना, 15 अगस्त 1947 को गांधी फेल हो गए थे ना। जी जितनी हिंसा देश में हुई, वो तो गांधी की शिक्षा के खिलाफ थी। बिल्कुल। और उनको बहुत दुख भी था इस बात का। तो गांधी एक्चुअली उस दिन हारे थे। पर मुझे ऐसा हमेशा से लगा है सर कि जो कुछ भी सिखाया जाता है आने वाली हम्म। पीढ़ियों को, वो सब हम्म। वैसे पहुंचता नहीं। फिर उसका अपना ही इंटरप्रिटेशन होता है, वो अपने ही तरीके से उसको सोचते हैं और जितना कन्वीनियंट है उतना लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। आपको भी ऐसा लगता हाँ, है? जितना कन्वीनियंट होता है उतना रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और डिपेंड करता है, जैसे अपना आजकल अपना तो मतलब निकाल लेते हैं। करेक्ट। और दूसरा, आजकल तो थोड़ा प्रोपेगेंडा का भी जमाना है, तो जी। सच या झूठ जो भी लोगों को बार बता बार दिया कहा जाए जाए तो वही वही सच हो जाता है। तो जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें जो मैं खुद सोचता था कि सच है, वो पता लगा रहे नहीं हो सब, तो उसका तो कोई सच से लेना देना ही नहीं है। बट है, हाउ टू गेट इन टू आप जिस डायरेक्शन टू। तरह से जो जो डार्क सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, जैसे आर्टिकल 15 है, या उसको जिस तरह से शूट करते हैं, तो क्या मेरे यहाँ एक पूछ रहे राइटर दोस्त है जो, कि आप पहले से इसी तरह से स्क्रिप्ट बनाते हैं या जब शूट करने लगते हैं तो ऐसे शॉर्ट ख्याल में आते? ज्यादातर शूटिंग का काम शूटिंग के समय ही होता है, उसी वक्त ख्याल आता है। मतलब राइटिंग और शूटिंग के बीच में फिल्म राइटिंग के समय भी थोड़ी बहुत दिखती है फिल्म, लेकिन राइटिंग और शूटिंग के बीच में ज्यादा नजर आनी शुरू होती है। तो और फिर बहुत सारी कुछ, जब आप सेट पे पहुंचते हैं तो जो आपके सारे टूल आपके सामने आते हैं ना, एक्टर्स, लोकेशन, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टीज, पीरियड, कैमरा, लेंस,
सारे टूल्स जब सामने आ जाते हैं तो फिर और बेहतर दिखना शुरू हो जाता है। पर डार्क तो नहीं, डार्क भी बनाने लगा हूँ क्या, मुझे पता नहीं है, ऐसे सोचा नहीं। आर्टिकल हाँ 15 आर्टिकल को तो, तो डार्क हाँ ही कह आर्टिकल थोड़ी सकते हैं, डार्क क्या थी। कहेंगे सर। हाँ एक्चुअली मुल्क भी थोड़ी डार्क थोड़ा थी। सा पैथोस तो है। हाँ हाँ, मुल्क एक भी थोड़ी पेन के डार्क थी। साथ निकलते हैं आप उस फिल्म को मनोरंजन तो नहीं कह सकते, आप कुछ नहीं नहीं नहीं, लेकर घर जाते हैं। नहीं मनोरंजन यू तो नहीं, यू आर टेक राइट। टेक मतलब बोझ लेकर निकलते हैं कि क्या हम ऐसे देश में रहते हैं। जानते हैं हाँ कि रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं जानते हैं, सब हाँ जानते हैं कि ऐसे देश में रहते हैं। लेकिन वो एक बात जिस जो आपको पता है और फिर भी कोई जब कहता है तो सोचने पर मजबूर कर देता है, तो थोड़ा इट्स अ फिल्म विच गिव्स यू पेन, कहीं दुखता हाँ। है सॉरी, देखने मतलब के ठीक बाद। है, तो बाकी तो रोहित शेट्टी बनाता है ना हंसाने वाली मजे करने वाली पिक्चर। जागना ही चाहिए। नहीं नहीं, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। कोई तो हाँ। जगाए। हमारे एक मुझे बहुत खुद गुजराती मुझे खुद अच्छे कवि है। रोहित की फिल्में देखने में मुझे खुद बहुत मजा आता है। गोलमाल, और मतलब उड़ती हुई गाड़ियां, लड़ाई झगड़े, मुझे बड़ा मजा आता है। मेरा फेवरेट डायरेक्टर है वो। हमारे हमारे एक गुजराती कवि है झवेरचंद मेघाणी। उनकी हम्म। एक कविता है जो कहती है, आपना माथी कोई तो जागे, हम में से कोई तो जागे। सब हाँ नीम अपना के मत पेड़ कोई के तो जाने। नीचे खटिया बिछा के सोए हो, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। લીમડા હેઠળ हाँ ખાટલા ઢાળી સૌ સૂતા હોય એમ કા લાગે, આપણામાંથી कोई तो जागे। तो आप जगा क्या रहे हैं बात, सर, बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं खुद ही और जग नई रहा हूँ। जनरेशन अलग सोचने पर मजबूर होती है, तो मैं ये खुद तो ही सबको जगने की करना कोशिश भी कर रहा हूँ। चाहिए। मैं जगूंगा तो आवाज होगी तो और भी जगेंगे। कैसा होता है घर में हाँ। सुबह सुबह जब माँ उठ के चाय बनाना शुरू करती थी तो बर्तनों की आवाज आती थी, नल खुलता था, उसके हाथ से कुछ गिर जाता था तो फिर एक और उठता था, फिर उसके वजह से दूसरा, ऐसे ही उठते हैं लोग। घर में एक तो उठे। सही बात है सर। तो ये जो फिल्मों का आपका 2002 से लेकर के 2020 तक 18 साल, हम्म हम्म। आपके दिल के करीब कोई एक फिल्म अगर आपको बतानी हो तो वो कौन सी। हालांकि सभी बच्चे प्यारे होते, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता कोई है मेरी एक बेस्ट फिल्म जो। फिल्म थप्पड़ है अब तक, क्योंकि थप्पड़ में कहानी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी फिल्में बनाना मुश्किल होता है जिसमें कहानी सिर्फ छोटी सी जी। है। वो बहुत सारे दोस्त जो फिल्म देखने गए, जो देख के आए, तो मुझे बोलते थे कि हम सोच रहे थे कि तू कैसे बनाएगा, एक आदमी ने एक बीवी को थप्पड़ मार दिया तो अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो कैसे तू फुल टाइम फिल्म कैसे बनाएगा। हम्म। तो मैं खुद भी हैरत में था, तो उस हिसाब से ये मेरी सबसे अच्छी फिल्म तो लगती है मुझे, कि कमर्शियल भी है, बिजनेस भी करती है बॉक्स ऑफिस पे, हीरो पे डिपेंडेंट नहीं है, एक हीरोइन पे डिपेंडेंट है, कोई थ्रिलर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, एक सिंपल सी बात है, और उस पे ऑडियंस को थिएटर में 1.25 घंटे बांध के बिठा के रखना और फिर उनके दिल तक पहुंच के एक बात कह देना थोड़ा मुश्किल काम है, वो अच्छे से निभा इसमें। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू। सर आपने एक बहुत नीचे बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, उनको बहुत सारा थैंक यू, और बहुत लोग पूछ रहे हैं असिस्ट कैसे कर सकते हैं। मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हैं विख्यात सरीन, VIKHYATSAREEN, फेसबुक पे उनको ढूंढिए और उनको मैसेज करिए, वो हमेशा अच्छे असिस्टेंट को ढूंढते रहते हैं। विख्यात सरीन। सर आपने एक बहुत बड़े एक्टर को पहला ब्रेक दिया था, दिल्ली किसको? से उनको बुलवाया। आप ही मनोज सोचिए। को। मुझे तो मनोज। आज ही पता चला है, पंकज जी ने बताया, चाय के गल्ले पे हाँ। आपने मैसेज छुड़वाया था मनोज और वो बाजपेयी। आए थे। तो मैं चाहूंगी ये कहानी आप बताएं सबको। कुछ नहीं, एक शो शुरू कर रहे थे पंकज, तो एक जी। एक्टर की तलाश थी और कोई उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था। जी। फिर मैंने बोला उनको कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है मनोज बाजपेयी। अच्छा, मनोज ने और मैंने साथ में बहुत धक्के खाए हैं, साथ में काफी हम लोग का पूरा एक ग्रुप था दिल्ली में, जी। तो साथ में भूखे रहे हैं, साथ में खाना खाया है, साथ में काम किया है, जिसको मुहावरे में बोलते हैं दांत काटी रोटी, वैसी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा बुलाओ, तो मैंने फोन किया। अब उस समय वो आया नहीं था, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो मैंने फोन किया उसके नीचे चाय के ढाबे पे,
तो उस जमाने में ऐसे फोन होते थे कि आप चाय वाले को बोलते थे मनोज को बुला के रखो, मैं दोबारा कर रहा हूँ। हाँ जी। तो मैंने कहा मनोज को बुलाओ, तो उन्होंने मनोज को बुलाया और मैंने कहा, फिर दोबारा फोन किया, मनोज से बात हुई, मैंने कहा आ जा, पहली फ्लाइट पकड़ के आ जा। तो बोला पागल हो गया क्या, पैसे कहाँ है फ्लाइट के, पागल है, फ्लाइट के पैसे किधर होते अपने पास। मैंने कहा भाई तू जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, अच्छा उस समय ये सब भी नहीं था ना, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वेटीएम कुछ नहीं था। तो मैं कहा तू जैसे बॉम्बे पहुंचेगा मैं तेरे हाथ में पैसे रख दूंगा। तो बोला अच्छा मैं कुछ करता हूँ। तो फिर पता नहीं उसने कैसे वो सब किया, उसने टिकट कराई और रात को आ गया। अगले दिन सुबह जो है उसको पंकज से मिलाने ले जाना था। अच्छा पंकज पराशर थोड़े से ऐसा हाई एंड आदमी है, थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी आदमी है, जी बड़े जी। बड़े लोगों से हम, अच्छा उसको हीरो बनाने के लिए ले जा रहे थे। तो मनोज आया तो एकदम गंदा संदा आया, और वो काम नहीं था उसके पास, पैसे वैसे नहीं थे, तो वो ना देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो रात को पता नहीं 11-12 बजे जाके किसी सैलून में, स्पा में उसका फेशियल वेशियल कराया, उसके बाल वाल कटाए, तो थोड़ा स्किन में रौनक आई उसके। तो उसके अगले दिन सुबह फिर मैं पंकज के पास लेके गया, तो पंकज ने देखा, गुड वेरी गुड ओके चलो लेट्स स्टार्ट शूटिंग। तो ऐसे लेट्स स्टार्ट शूटिंग हुई। सर कोई आवारा लेखक है जो कह रहे हैं आपसे कि कितनी बातें करोगे, खत्म करो अब। क्या हो आपके गया, दोस्त ही होंगे आई एम श्योर। आवारा आवारा लेखक? लेखक नाम है उनका। नहीं असली नाम नहीं आवारा होगा ना ये। लेखक। अबे क्या कितनी कह रहे हैं बातें वो? करोगे, रात खत्म करोगे, क्या ऐसा लिख रहे हैं वो आपके जब दोस्त ही तक होने आप, चाहिए, मुझे तो नहीं कहेंगे। आवारा लेखक तो नहीं जानता मैं किसी को। वो उनका लोगो आवारा उनका लेखक है, पता नहीं वो कोई और ही होंगे। उनका असली नाम कुछ आपके और होगा, दोस्त ही उनसे होंगे। बोल दीजिए माफी चाहते हैं वो, आप बात करना चाह रही हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो चले जाए, उनसे बोल दीजिए आप सो जाओ, गुड नाइट। आप सो जाइए, हम बातें करते रहेंगे। आप सो जाओ, हम बातें कर रहे हैं। वेरी गुड। कभी कभी ऐसा अभी जैसे कुछ भी लिख दो ना आजकल फेसबुक में ना, तो लोग डांटने लगते हैं आके। मैंने कुछ लिख दिया, उसने बोला और तू बैठ के फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा है। तो मेरा उनसे क्या होता है कि भाई आप क्यों फॉलो कर रहे हो मुझे, मत करो। मेरा मन सही करेगा बात मैं है दिन भर सर। लिखूंगा, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन इनसे ऐसे नाराजगी से नहीं कह रहा हूँ, इनसे तो प्यार से कह रहा हूँ, आवारा है तो आप सो जाएं। काजल जी ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है, बोली 9:30 से 10:30 आपको हमसे बात करनी है। जी तो सर। अब वो और देखिए मेरी कितने सारे जिम्मेदारी लोग है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हाँ, सुनना चाह रहे हैं आपको। ऐसा आप नहीं है बताइए कि 10 सवा 10 बजे तक लोग बैठे हुए हैं, मैं तो सुनूंगा और सीखूंगा सर, ऐसा किसी ने बोला फिर अभी। सर यू आर मरमई तो फेबुलस। चली आप गई। देखिए कितने लोग हाँ आपको चाहते हैं सर। एक किसी ने हाँ। लिखा है कि मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ। एक बीच में आकाश था जो कह रहा था कि मैं आपके लिए लिखना चाहती हूँ। तो मैं आकाश जी से कहूंगी कि मैं पहले लाइन में खड़ी हूँ, तो आप मेरे पीछे लग जाएं। मैं लिखना चाहती हूँ आपके लिए। तो आप पीछे खड़े हो जाए, आगे नहीं। तो सर मेरी प्रॉब्लम, जी, जी आप कुछ कह रहे थे। मैं कहा नहीं मेरी आप कह रहे प्रॉब्लम थे ये है कि मैं प्रॉब्लम। खुद लिखने लग गया हूँ आजकल। तो मेरे साथ, मतलब मैं अकेला तो नहीं लिखता हूँ, जी आर्टिकल में मेरे साथ कोई और था, थप्पड़ में मृण्मयी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो खाली हेलो हेलो बोलती हुई आई थी फिर गायब हो गई। तो मृण्मयी थी, मृण्मयी एक और फिल्म लिख रही है मेरे साथ, थप्पड़ इज अ वेरी नाइस फिल्म, थैंक यू। तो मिल जाएंगे कभी, अब कैसे मिलेंगे पता नहीं यार। बहुत सारे लोग सर ऐसी फिल्में अब देखने लगे। कि आवाज चली गई, आप फ्रीज हो गई। बहुत सारे लोग अब ऐसी फिल्में देखने लगे। अब फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गई, जो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, आपकी थॉट आवाज बहुत प्रोवोकिंग टूट टूट फिल्में के आ भी। रही है। हाँ आप दोबारा सॉरी बोलिए, अब सर। ठीक हो गई आवाज आपकी। हाँ, थॉट प्रोवोकिंग फिल्में भी अब मेन स्ट्रीम में बनने लगी। एक वक्त था जब लोग मतलब उसको पैरेलल कह के निकाल देते थे, अब ऐसा नहीं जी होता जी है। जी जी जी। मैं उस तो दिन ये मिर्च बहुत मसाला बड़ी देख रहा बात है था। कि ऐसा। जी मिर्च मसाला जो केतन की फिल्म है, केतन मेहता हाँ जी की, हाँ जी हाँ जी। मतलब वो आप प्लीज दोबारा देखिए। वो आज की तारीख में फिल्म रिलीज होना तो ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इतने पैसे कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे, उतरेगी नहीं। और वो है फेमिनिस्ट फिल्म, 87 की फिल्म है। हाँ जी। तो ये सब फिल्में पहले बनती थी, श्याम बाबू बनाते थे, गोविंद जी बनाते थे, बहुत सारे लोग बनाते थे।
बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी। जी जी हालांकि जी। उनकी फिल्में उस समय भी चलती थी, लेकिन केतन, गोविंद जी, श्याम बाबू, इन लोगों को ऐसा पैरेलल न्यू न्यू वेव ऐसा कुछ बना के छोड़ दिया गया था, जो कि था नहीं। हाँ मतलब हर हर पीढ़ी में न्यू वेव तो होता ही है, होना ही चाहिए बल्कि। तो एक और बात सर आपसे पूछनी है मुझे, जो जी। यहाँ भी बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हम्म। टेक्नोलॉजी भी आपका एक बहुत बड़ा फोर्टे है कि जी। आपने रावण बनाई या 10 बनाई, थ्रिलर टेक्नोलॉजी, और एक तरफ इतना इमोशन, इतनी नाजुक सब्जेक्ट पे आप डील करते हैं। तो ये दोनों हम्म। आपके भीतर कैसे आप बैलेंस कर लेते हैं कि इतनी कमर्शियल फिल्म, इतनी टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ इतनी छोटी लेकिन बहुत ही नई बात, इमोशनल बात, कैसे डील कर लेते हैं? या तो मोस्टली सारे डायरेक्टर सिर्फ टेक्नोलॉजी की फिल्में बनाते हैं, जो लेके आते हैं फिर वही उसी रट में लगे लेते हैं, लेकिन आपकी रेंज बहुत बड़ी, तो कैसे हाँ, मेरा मैनेज कर ऐसा लेते है, हैं इतनी बड़ी मतलब रेंज? भले वो, मतलब खाना मुझे जैसे सर आपको मैं थोड़ा देसी। सा इंटरप्ट करूंगी, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, मोहित करके एक है, जिन्होंने कहा कि ये एक गर्ल का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म। और आपने लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाई है। जो नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ आर्टिकल रही। 498 ए जो है, जिसमें लड़कियां भी गलत करती हैं, जिस पर कोई कुछ कहता नहीं है, ऐसा उन्होंने आपसे कहा है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पाया। सर बार बार आपकी आवाज कट रही है। हाँ, वो कुछ अजीब सी हो रही है। हाँ जी। आपकी पिक्चर भी ना बीच बीच में फ्रीज हो जा रही है। हेलो। हाँ, आप बोलिए। हाँ अब सुनाई दे रहा हेलो। है। जी। हाँ हाँ सुनाई दे, हाँ, क्या मुझे बोल रहे सुनाई थे दे आप? रहा है। क्या बोल रही थी आप? मैं दोबारा ये बोलिए, कह रही सवाल थी था कि किसी और आपकी का। इतनी इतनी। सयानी गुप्ता है सर। कहाँ है शायनी? है हेलो बीच में, शायनी, ये हाउ रही। यू? शी सेइंग अच्छा, सर। मेरे मेरे यहाँ वो फ्रीज हो गया है। ये रही। हाँ जी। बहुत सारे लोग आए हैं सर आपको मिलने, हेलो कहने, बहुत बड़ी बात है। सयानी गुप्ता इज वन शाइन, अनदर एक्टर whom I love. She is very good. शी इज वेरी गुड, शी इज मोर देन वेरी गुड। She is more than very मेरे good. I agree with you. मेरे यहाँ ये फ्रीज हो गया है। जो स्क्रॉल होता है ना, लोगों की जो बातें होती हैं, हाँ वो ऐसे फ्रीज हो गई हाथ है। से इसमें कर हाथ चलना दीजिए आप शुरू। तो हो जाए। हाँ, मैंने किया तो चल पड़ा। आप हाथ से मुझे करेंगे पता तो नहीं, हो मैं जाए। इतना इतना टेक्नोलॉजी सेवी हूं नहीं, सीख रहा हूँ सर मैं। आप रावण बना लेते हैं और फोन पे आप नहीं देख सकते, क्या बात कर रहे अरे, तो रावण के टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था ना। हैं? उसके बाद इतनी फिर मैं टेक्नोक्रेट सामाजिक। फिल्म आपने बनाई सर। हाँ, देखिए, फिर इसको फिगर आउट भी तो कर लिया ना। मैं आई ऐसे एम अ ही गुड बस लर्नर। खाली नहीं। You have to. Yes, that's what I was told by Pankaj ji, that he is a हाँ। fantastic student. हाँ, मैं तो सीखने में सर का इतनी उस्ताद बड़ी हूँ। रेंज, एक तरफ टेक्नोलॉजी, एक तरफ 10, कोई पूछ रहा है सर कि 10 कैसे बनी, प्लीज बताइए। सनी ड्रॉनवर, आई डोंट नो, सनी ड्रॉनवर, ड्रोनवार, हाँ। ये सनी जो है, जो पूछ रहे हैं कि 10 कैसे बनी, कैसे बताइए। बनी मतलब? क्या होता है कि 10 के पहले मैंने कभी एक्शन शूट नहीं किया था। जी जैसे रावण के पहले मैंने कभी वीएफएक्स फिल्म नहीं बनाई थी। तो जी। एक कहानी आ गई दिमाग में। अब उस कहानी को लिख दिया गया। उस कहानी की अपनी एक रिक्वायरमेंट थी। फिर समझ में आया इसमें एक्शन करना सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कुछ पढ़ के, थोड़ा सा देख के सीखा, थोड़ा सा काम पे सीखा। हमारा काम ऐसा ही है कि जिसमें जैसे अब रावण बनाने चला था, तो इतना सारा वीएफएक्स तो मुझे आता नहीं था। मुझे पता नहीं था शुरू कहां से करूं। बहुत सारा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करके। और मैं सवाल पूछने से घबराता नहीं कभी। एक बचपन में बड़ी अच्छी चीज सीखी थी मैंने, कि नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। कोई भी जी दिमाग में आपके सवाल आता है तो वो सवाल स्टूपिड नहीं हो सकता। तो मैं सवाल पूछ लेता सर हूँ एक, फौरन।
सर एक रियाज है जो कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग सिखानी चाहिए। ऑनलाइन मैं खुद ही सीख रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखना, मैं क्या सिखाऊंगा, वो भी ऑनलाइन। पर मैं कल ही बात कर रहा था किसी से कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे पास शेयर करने को जो मुझे करनी चाहिए, तो उसका कोई रास्ता निकालूंगा मैं। सो मुझे उसको, हाँ ऐसा उसको। मैं कहीं ऐसा सीखी हूँ सर कि आप जब आते हैं तो कुछ भी लेकर नहीं आते। तो जो नॉलेज क्या हमने चीज? यहाँ पाई है उसको, सॉरी, जो नॉलेज यहाँ पाई है उसको यहीं छोड़ करके जाना चाहिए, पीछे नए आने वाली पीढ़ी के लिए सिखा के जाना चाहिए। किसी ने फिर पूछा है सर कि स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या क्या बातें अहम है, एक अच्छे लेखक को सब क्या सीखना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना, वो एक क्राफ्ट है, वो करते मतलब उसमें बहुत सारा साइंस भी है, बहुत सारा कन्विक्शन भी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको कहने का आपका क्या एक अंदाजे बयां हो, वो बात बयान कैसे की जाए, वो अंत में शुरू की जाए कि बीच में शुरू की जाए कि शुरू में शुरू की जाए, वो सारी चीजें एक तो आपके कैरेक्टर का हिस्सा, उसका एक क्राफ्ट भी होता है। क्राफ्ट से, करने से, सीखने से आता है। बहुत सर आपकी आवाज भी कट रही है और विजुअल भी कट रहा है। आई थिंक अच्छा, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम। जी, अगर हो सके तो आपके फोन का वाईफाई बंद कर दीजिए। वाईफाई बंद कर दूं? आप फोन हाँ, वाईफाई बंद कर दीजिए और फोन डेटा पे बात कीजिए। मैंने तो कर दिया। तो मोबाइल डेटा पे बात कीजिए आप, तो बेहतर रहेगा। जी सर, हाँ, स्क्रिप्ट अभी के ठीक लिए हो आप गया। बता रहे थे। हाँ, हाँ, तो बहुत आप सारे स्क्रिप्ट के तरीके, लिए बता रहे थे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं। एक तो हम्म। आपका पर्सनल कन्विक्शन होता है कि मुझे ये बात कहनी है, उस बात के फिर चारों तरफ एक कहानी होती है आपकी, वो कहानी आपको कहाँ से सुनानी शुरू करनी है, वो कहानी आपको अंत से सुनानी शुरू करनी है कि बीच से सुनानी शुरू करनी है कि शुरू से शुरू करनी है, उसका एक साइंस भी होता है, उसका एक इंस्टिंक्ट भी होता है। वो इंस्टिंक्ट तजुर्बे से आता है, बहुत सारा देखने से, बहुत सारा पढ़ने से, बहुत सारा करने से आता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। और कुछ लोग मतलब गिफ्टेड होते हैं जो अपनी पहली फिल्म ऐसी लिख देते हैं कि सारी दुनिया सीखती है उनसे, तो वो उनके पास गिफ्ट होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गिफ्ट भी ऐसे होता है कि आप अचानक एक दिन उठे और आपने एक ब्रिलियंट स्क्रिप्ट लिख दी। वो बहुत सारी स्क्रिप्टें पढ़ी होती हैं, बहुत सारा सिनेमा देखा होता है, और उसके अंदर एक अपनी आर्ट डेवलप की होती है। वो भले आपकी फिल्म पहली लिखी गई हो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी स्टडी होती है। तो बहुत सारे कोई एक गुट्टी नहीं है उसकी जो पिला दी जाए और आप स्क्रिप्ट लिखना या फिल्म बनाना या एक्टिंग करना या कोई भी ऐसी आर्ट सीख जाएंगे। आप खुद किन किन डायरेक्टर से या राइटर से इंस्पायर्ड है, या बहुत किसको सारे हैं, देखना पढ़ना चाहेंगे? सॉरी। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे कंटेम्प्रेरीज में ही बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। विशाल बहुत अच्छा है, भारद्वाज, जी। अ, सुभाष कपूर बहुत अच्छा है, सुधीर मिश्रा बहुत अच्छे हैं, जी। केतन बहुत कमाल है, मेहता, उसके पहले जाएंगे, मतलब जो जो मैं पहले नाम ले रहा था, गोविंद जी, श्याम बाबू, अ, ये लोग सब भगवान टाइप के लोग हैं। इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं और जो हिम्मत 70s में और 80s में की है, वो बहुत कमाल की बात है। उस जमाने में तो मतलब सिनेमा हॉल ही नहीं थे हिंदुस्तान में, फिर भी वो फिल्में बनाते थे और 4-4, 5-5, 10-10 थिएटरों में फिल्म रिलीज होती थी। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, तुम बिन 105 थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो कि हार्डकोर कमर्शियल फिल्म थी, जिसका म्यूजिक इतना हिट था। बहुत ज्यादा, आज तो भी हिट सोचिए, है। आक्रोश कितने थिएटर में रिलीज हुई होगी, उससे पहले रिलीज हुई है और मेन स्ट्रीम नहीं है, तथाकथित मेन स्ट्रीम। तो तब से एक मतलब बहुत ब्रेव फिल्में हैं, बहुत बड़ी महान फिल्में हैं जो तब से लेकर आज तक मैं गोविंद जी के साथ काम कर चुकी हूँ ये बहुत बड़ी साल समस्या पहले। है। हाँ,
तो बहुत साल पहले से बनी है और बन रही है, और जी उन सबसे सीखने को मिला है। उन सबका सिनेमा देख के फिर विदेश में, यूरोप में है, अमेरिका में है, दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और राइटर्स। सर, कोई पूछ रहा है कि आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं? अरे 1 लाख है, 1 करोड़ है। आज ही मैं ऐसे बलाइयां ले रहा था एपोकलिप्स नाउ की, फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला की पिक्चर है। हाँ जी। फुल मेटल जैकेट है। मतलब ये वो फिल्म है, द शाइनिंग है, ये वो फिल्में हैं जो कभी भी लगा दो और देखना शुरू कर दो। हिंदी में जैसे मिर्च मसाला है, मैं कभी भी देख सकता हूँ। सुधीर भाई की धारा भी है, कभी भी देख सकता हूँ। हंसल की शाहिद है, विशाल की हैदर है, मकबूल है, सुभाष की जॉली है, कश्यप है, कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहीं से भी लगा दो, बीच में, शुरू में, अंत में, कहीं से भी लगा दो। तो गोविंद गोविंद जी की द्रोहकाल है, मुझे बहुत पसंद है। श्याम बाबू की जुनून है। इतनी सारी जुनून तो तो है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। हाँ। तो सर, दूसरा ये भी पूछना चाह रही थी, ये बार बार मुझे कह रहे, मैम व्हाई आर यू इग्नोरिंग? आई एम नॉट इग्नोरिंग। यू नॉट आस्किंग, आस्क। हाँ, ये कोई पूछ रहे हैं, मैम व्हाई हाँ, नहीं आर नहीं, यू वही मैं कह इग्नोरिंग? रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप, विक्रम कोहली है कोई, सर शिवराम कोहली, पता नहीं आपको क्या सुन के पूछना चाह जिंदगी रहे गुलजार होगी। आपको सुनने को बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। मैम फिर आए, मैम वाई आर यू इग्नोरिंग? अरे पूछना भाई शिवम, हैं। ये मैं गुजराती में नहीं कुछ लिखा इग्नोर है, वो किसी पढ़ के को बताइए करती मुझे। भाई। गुजराती में क्या लिखा है? ये पावेल कैसा है? लॉकडाउन, एक एक अच्छा सवाल सर व्हाट्स जयदीप अप जी ने पावेल? पूछा है कि इस लॉकडाउन में कोई ऐसा अनुभव है जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? एक तो ये बताना चाहूंगा कि थप्पड़ के हीरो भी है यहाँ पे इस समय, पावेल गुलाटी साहब। अभी मुझे नजर आए वो, पता नहीं कहाँ चले गए अब। पंकज जी भी आने वाले थे, पता नहीं क्या हुआ। पंकज जी ये नहीं वो, आएंगे। नहीं, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। अरे नहीं। हाँ, आप क्या पूछ कहा रही थी? था। मैं पूछ रही थी, लॉकडाउन में कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें, आपके लिए बहुत यादगार रहा हो। एक्चुअली तो मतलब बहुत सारे हैं। पीछे मेरे एक दोस्त के ड्राइवर को कोरोना हो गया था, उसके लिए अस्पताल ढूंढने का जो एक तजुर्बा रहा, वही अपने आप में बहुत स्कैरी था। ये आया पावेल फिर, डिनर सून सर, लॉकडाउन खत्म करो। मैं भी कराता हूँ पावेल, सब मेरे कंट्रोल में है। तो वो एक अपने आप में बहुत स्ट्रेंज। और शुरू में एक दिन में मुझे याद है, मैं गाड़ी लेके जब पहली बार या दूसरी बार निकला, तो ऐसे सड़क पे इतनी ईरी फीलिंग थी, कोई था ही नहीं। और मैं 30 साल हो गए लगभग बंबई में, मैंने बंबई को ऐसा कभी देखा ही नहीं। किसी ने नहीं देखा सर। तो मतलब चिंता हो गई थी। पाविल जी फिर आ गए, हाँ 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 कह हाँ हाँ हाँ, बदमाश है पावेल जी। रहे। जी सर, तो बम्बई के हाँ, बारे में आप तो ये कह रहे बहुत सारी फीलिंग है। मुझे लगता है कि बहुत सारी फिल्में भी बनेंगी। अश्विनी भाई कैसे हो आप? अश्विनी चौधरी साहब, जिन्होंने धूप बनाई थी, नेशनल अवार्ड मिला था। लाडो बनाई थी उसके पहले। दिया मिर्जा जी भी आई हैं। हेलो दिया, कैसी है? तो क्या बात है सर, आपके कारण तो कौन कौन आ गया मेरे इंस्टा पे। सब आपको सुनना चाह रहे हैं, देखिए। इनको हमारे यहाँ एक्चुअली ये कहते सब, हैं कि शंकर शंकर के मंदिर में नंदी भी पूजा जाता है। मतलब वो मेरा ऐसा हो गया कि कैसे बड़े बड़े लोग मेरे इंस्टा पे आ गए आज। नहीं नहीं, दिया तो इसलिए आई है कि मैं कोई बकवास नहीं कर दूं, तो वो ध्यान रखेगी कि मैं कोई पॉलिटिकल बात कर दूंगा, कुछ बकवास कर दूंगा, तो यही डांटेगी वो मुझे। तो दिया तो इसलिए आई है, मुझे पक्का पता है। कि लेकिन अनुभव को पॉलिटिकल बात खामोश रखे। हमेशा थोड़ी बकवास होती है सर, किसी को तो बोलना पड़ेगा, जैसे हमने बातें की। somebody has to say something। सभी हाँ, चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा। मैं तो करता रहता हूँ अपने हिसाब से। मैं पढ़ती रहती हूँ। दिया विद हर ब्यूटीफुल लाफ शी कम्स बैक। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ी थोड़ी सियासत भी करते हैं, थोड़ी फिल्में भी बनाते हैं, थोड़े मजे भी करते हैं। फिल्म मेकिंग और तो आप वो स्क्रिप्ट राइटिंग ड्राइवर की के लिए हॉस्पिटल हॉस्पिटल ढूंढने की बात भारी कर रहे पड़ा, थे, ड्राइवर। मुश्किल पड़ा। मतलब मेरी डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा अनुभव
जो मिल रहा है वो ले लो, चॉइस मत ढूंढने निकलना, क्योंकि वो भी नहीं मिलेगा फिर। तो वो सब बहुत स्कैरी है। दीपाली आई, दीपाली हमारी हेयर ड्रेसर है, हमारी हेयर स्टाइलिस्ट है, शी लॉस्ट अ फादर, दीपाली 10, she lost her father recently with corona. She was herself suffering from corona, which she has recovered. So it has become a very बहुत सॉरी scary दीपाली, है। आई एम सॉरी टू नो दिस। जी हाँ, सर। वो बेचारी कब से मिलना चाह रही है, मैं उसको मिलना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू गिव हर अ हग, पर वो मिल ही नहीं सकते आजकल। वो न्यू बॉम्बे में रहती है। सो दीज आर वेरी डार्क टाइम्स। और जो हम लोग, मतलब कोई, यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, बट वी कुड स्टिल हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड, जो कि हम नहीं है। या ऐसा तो सर कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। हाँ द एंटायर वर्ल्ड विल बी क्लोज्ड, ऐसा कभी जी, किसी ने नहीं सोचा था। हाँ वो हो एक आध गया, और देश अभी बंद हो। बंद रहेगा अभी मेरे ख्याल से थोड़े और समय। ये तो हम सर लोग अभी पार्टिंग क्या डिनायल में है। मैसेज कहें? सॉरी सर, हम लोग अभी डिनायल में हैं पार्टिंग कि क्या जल्दी ठीक हो मैसेज जाएगा। कहेंगे? हाँ जी। क्या सोनू मैसेज सूद कहेंगे? सर, सोनू सूद ने सुनो जो सर किया ने उसके जो बारे में हेल्प आप किया क्या उस पे कहेंगे, ऐसा कोई पूछ रहा है। क्या कहूंगा, गले सोनू लगाऊंगा सूद, उसको, और क्या करूंगा। सही बात है सर, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे इंस्टा पे आए। बहुत बड़ी बिजी बात होगा की इस है समय उन्होंने, बहुत वो, बहुत बड़ा, कमाल किया सोनू ने। सच में कमाल किया। हम्म। मतलब सलाम करने चाहिए ऐसे इंसान को। सर मैं आनंद तो मोहन झा, बड़ा लंबा मैसेज था, झा साहब पढ़ नहीं पाया, मैं निकल गया। अच्छा, उसको मैं क्या पुल पढ़ना डाउन भी चाह कर रहे? सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं। ओह, मेरा फोन गिर, मैंने गिरा दिया फोन। चलिए देखते हैं, फिर आएंगे वो। लोग पूछ रहे हैं कि आयुष्मान खुराना के साथ कोई ग्रेट एक्सपीरियंस हो आपका तो शेयर कीजिए। हुआ ना, जयदीप परमार पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस का नाम है आर्टिकल 15। लेकिन उसके शूटिंग के दौरान, 1000 है, मतलब ये सबसे बोरिंग सवाल होता है, क्या नहीं मैं हुआ। तो जानती हूँ कोई पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रही। नहीं नहीं, मैं उन्हीं इसमें से मुझे, पहले, मैं उन्हीं मैंने से नहीं कह रहा पूछा। हूँ, उन्हीं से कह रहा हूँ, सबसे बोरिंग सवाल होता है। मैं एक, नहीं पूछती ऐसे सवाल। हाँ वो, मैं तो चाहूंगी आप अपने, आप जो कहते हैं अपनी फिल्मों से वही आपकी बात है, फिर आपसे क्या मतलब पूछे आयुष्मान के एक्चुअली। साथ जो अच्छे एक्सपीरियंस हुए, मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोले हैं, तो कोई सा ढूंढ लो एक आध दो, तो उसमें 10-20 मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, सही हाँ, बात है। तो सर क्या पार्टिंग मैसेज देंगे ऐसे वक्त में? इतने सारे लोग जो आपको सुनने आए, ऑलमोस्ट 250 लोग हैं, क्या कहेंगे पार्टिंग सर? मैसेज तो ये है कि लगे रहो, चलते रहो, रास्ते निकलते जाते हैं और अपन आगे चलते जाते हैं, ज्यादा परेशान होने का नहीं। अभी पहले तो ये जो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसका जो पता नहीं अभी कितने समय और हमको परेशान करेगा, पहले इस दौर से निकला जाए। सबसे जरूरी चीज होती है अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई करना। ज्यादातर लोगों को अपने ड्रीम मालूम ही नहीं होता। नहीं मालूम होता, सही बात है। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे की सक्सेस को अपनी सक्सेस समझते हैं कि मुझे वो सक्सेस चाहिए, पर सक्सेस वो होती नहीं है। तो अगर मान सो लीजिए, ट्रू। हाँ मान लीजिए किसी ने लोनावला में फार्म हाउस बना लिया, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन ऐसा फार्म हाउस बनाऊंगा। पर क्या पता वो आपकी खुशी थी नहीं, आपकी खुशी थी कि आप नाव पे बॉम्बे से केरल जाएं। क्या पता वो आपका सुख था। तो ये इतना जरूरी होता है कि आप ढूंढें कि आपका सुख क्या है, आपको किस में हैप्पीनेस मिलने वाली है, और फिर वो सुख मुझे कैसे मिलेगा। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा सुख क्या है, आप उसको अचीव कैसे करेंगे। तो मेरा पहला आधा निर्माणा हो चुका है, मुझे पता है मेरा सुख क्या है। अब सही मैं बात है सर। अब मैं उसको तलाश रहा हूं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आइडेंटिफाई हो चुका है कि कहाँ जाना है, कर बस वहां तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूसरे की सक्सेस को समझते हैं कि मेरे को वहां पहुंच के खुशी मिलेगी। जी वो सर। गलत होता है, वो मिसलीडिंग होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू, स्पेयरिंग सच थैंक यू, वंडरफुल टाइम। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू। एंड गुड नाइट, स्टे गुड नाइट। सेफ सर। यू टू, ख्याल रखिए।